سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ قبل از وقت انتخابات کا اشارہ ملا ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ آئندہ انتخابات کب متوقع ہیں تو ان کا جواب تھا کہ انشاءاللہ جلد متوقع ہیں۔ جب بھی کوئی سیاسی پودا لگتا ہے تو کاٹ کر مصنوعی پودا کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی کی سیاسی تربیت ہونے نہیں دیتے۔ وہ ٹنڈو العیار میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پاکستان میں ہر دفعہ مذاق ہوا ہے، عجب عجب قسم کی کہانیاں لکھی گئی ہیں، اور ان کہانیوں کے جو آپ میں سے میری عمر کے لوگ ہیں وہ گواہ ہیں۔ جب بھی کوئی پولیٹیکل پودا لگتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، یہ کاٹ کے آرٹیفیشل پودا کو بڑا کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا لاس ہوتا ہے، ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے، یہ ان کے سوچ میں نہیں۔ ان کی سوچ میں صرف یہ ہے کہ یہ ان کو پسند ہے یا وہ ناپسند ہے۔ پسند تو عوام کی ہونی چاہیے۔ اگر یہ الیکشن فیئر ہوتے تو اس وقت کپتان پرائم منسٹر نہیں ہوتا۔ عوام میں آئے، ایک دم جلسے ہو رہے ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی اشارہ آپ کو ملا ہے؟ اشارہ ملا ہے ارلی الیکشن کا۔ آئندہ الیکشن کب تک متوقع ہیں؟ انشاءاللہ جلد۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ دوبارہ انتخابات کرا کے پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے۔ ان کو سمجھ نہیں، ان سے جان چھڑا کر ملک کو دوبارہ بنائیں گے۔ ہم ان سب کو جلدی گھر بھیج کر قبل از وقت انتخابات کرائیں گے۔ اسلام آباد صرف 10-15 سڑکوں کا شہر ہے۔ طاقت اسلام آباد نہیں، صوبوں کے پاس ہونی چاہیے۔ ان سے جان چھڑا کے پھر دوبارہ ملک کو بنائیں گے۔ انشاءاللہ جلدی ان سے جان چھڑائیں گے۔ آپ کا ساتھ رہا، عوام کا ساتھ رہا، تو ہم ان سب کو جلدی گھر بھیج کے ان سے جان چھڑوا کے ہم آپ کو ارلی الیکشن کرا کے اور پاکستان پورے میں پیپلز پارٹی کی وکٹری کرا کے پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کے دکھائیں گے۔ اسلام آباد کیا ہے؟ 10-15 سڑکوں کا شہر ہے۔ اب آبادی کچھ بڑھ گئی ہے، پہلے تو اتنی آبادی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اسلام آباد میں پاور ضروری کیوں ہے؟ پاور پروونسز کے پاس ضروری ہونے چاہیے۔ سامع ہے آرمی پبلک سکول پشاور، جس کو 4 سال بیت گئے، جو گھر کے آنگن میں خوشبو بکھیرتے تھے اب یادوں میں زندہ ہیں۔ والدین آج بھی غم سے نڈھال ہیں۔ درد ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آنکھوں میں خوابوں کے دیے تھے جلے اور تعبیر ہاتھوں میں لیے، چہروں پہ رنگوں منگوں کی بہار، جیسے کھلنے کو ہو کلیاں بے قرار۔ اس چمن کے پھول تھے وہ بھی کھلنا چاہتے تھے، زندگی کو زندگی سا وہ بھی جینا چاہتے تھے۔ ڈھونڈے انہیں زندگی، آج ڈھونڈے انہیں زندگی۔ زندگی یاد کرتی ہے، آج فریاد کرتی ہے۔ زندگی یاد کرتی ہے، آج فریاد کرتی ہے۔ رائے گا نہ جائے گا خون یہ معصوموں کا، اب زندگی ہر خوف سے آزاد کرتی ہے۔ زندگی یاد کرتی ہے، آج فریاد کرتی ہے۔ زندگی یاد کرتی ہے، آج فریاد کرتی ہے۔ آرمی پبلک سکول پشاور، وہ جگہ جہاں آج سے ٹھیک 4 سال پہلے معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ شہداء کی یاد میں اسی سکول میں آج تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی گورنر کے بھی تھے۔ شہداء کے اہل خانہ اور کور کمانڈر پشاور نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ آرمی پبلک سکول پشاور پر 4 سال قبل ہونے والے حملے کی یاد میں آرمی پبلک سکول میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں آرمی پبلک سکول کے شہداء کے اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں، آرمی اور حکومتی حکام نے شرکت کی۔ یاد کرتی ہے، رائے گا نہ جائے
तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए तराने गाए गए। शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और खत्मुल कुरान का एहतमाम किया गया। पाक आर्मी की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 4 साल मुकम्मल हो गए। दुश्मनों ने खून की ऐसी होली खेली कि पूरी दुनिया के दिल छलनी हो गए। दहशतगर्दी में मासूम बच्चों समेत 144 अफराद को शहीद किया गया। 16 दिसंबर 2014 का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे हुसूल इल्म में मशगूल थे। एफसी के वर्दी में मबूस दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। फिर क्लासरूम्स में तलबा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। स्कूल गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। हर तरफ तबाही के मनासिर, कहीं किताबें तो कहीं मासूम फरिश्तों की लाशें बिखरी थीं। कुछ ही देर में सिक्योरिटी फोर्सेस भी पहुंच गए, स्कूल का मुहासरा कर लिया। कुछ ही देर में तमाम दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। सानेहा है तो इंतहाई दुख भरा, जिसकी चुभन आज भी पूरी कौम महसूस करती है। लेकिन पाकिस्तानी दहशतगर्दों के आगे सीना सफर हैं। इतने बड़े सानेहे के बावजूद जिंदगी आर्मी पब्लिक स्कूल में आज भी रमा दमा है, जो इस बात का सबूत है कि कौम दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए तैयार है। सानेहा एपीएस में कई फूल मुरझा गए। ताहम शदीद जख्मी होने वाले बहादुर बच्चे मोहम्मद वलीद खान मौत के मुंह से वापस आए हैं। बर्मिंघम में ज़ेर इलाज इस तालिब इल्म से मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद खटक। जी जाहिद। ये खूबसूरत नौजवान आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का तालिब इल्म मोहम्मद वलीद खान है, जो आज से 4 साल कबल स्कूल पर दहशतगर्दाना हमले में शदीद जख्मी हुआ। इस चमन के फूल थे वो भी खिलना चाहते थे। जिंदगी को जिंदगी सा वो भी जीना चाहते थे। ढूंढे उन्हें जिंदगी। मोहम्मद वलीद खान का कहना है कि जब वो जख्मी होकर बेहोश हो गए तो उन्हें मुर्दा समझकर लाशों के साथ रखा गया, लेकिन सांस लेते एक नर्स ने उन्हें देखा। मेरे मुंह से खून के बुलबुले निकल रहे थे, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने देखा, एक नर्स ने देखा मुझे कि ये अभी भी जिंदा है। वलीद खान का मजीद कहना था, आज भी वो दिन याद है। बहुत से दोस्त बिछड़े और कुछ जख्मी हुए। 8 गोलियां मारी उसने। मेरे जो दोस्त थे वो भी शहीद हुए और जो हमारे टीचर्स थे वो भी शहीद हुए। वलीद के वालिदैन भी इस अलमनाक दिन को भूल नहीं पा रहे। उनके वालिद गुलजार खान का कहना है कि वो इन्हें हमेशा याद रहेगा। पाक फौज की बस मेहरबानी है कि उन्होंने वलीद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मे ली है, बल्कि सिर्फ वलीद की नहीं, उस दिन तो जितने भी बच्चे थे पाक फौज ने, आर्मी ने, सब बच्चों को ट्रीट कर रहा था। वलीद खान का कहना था कि मुल्क में क़याम अमन के लिए इक़दामात काबिल तारीफ हैं। इन बच्चों और वालिदैन को सलाम है जो कल्म की ताकत से दुश्मनों को शिकस्त दे रहे हैं। ISPR की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक फौजी अदालतों में 717 दहशतगर्दों के ट्रायल भेजे गए, जिनमें से 546 केसेस के फैसले हुए और 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। सानेहा APS के मासूम फूल हों, मुल्क के मारूफ कवाल अमजद साबरी हों, सबीन महमूद हों या SSP चौधरी असलम का कत्ल, पाक फौज ने सब अमन दुश्मनों को उनके किए गए फैसले सुना दिए। बाजा खान यूनिवर्सिटी, सफूरा गोट और कराची एयरपोर्ट पर हमला करने वाले भी या अंजाम को पहुंच चुके या पहुंचने वाले हैं। ये सब मुमकिन हुआ फौजी अदालतों के कयाम और इनमें होने वाले फैसलों के नतीजे में। हुकूमत ने जो 717 केसेस इन अदालतों को भेजे, उनमें से 546 के फैसले सुनाए भी जा चुके हैं। 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई, जिनमें से 56 अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, जिनमें बन्नू जेल हमले का एक दहशतगर्द और APS पर हमला करने वाले 5 दरिंदे भी शामिल हैं।
मैरियट होटल, परेड लाइन और ISI मुल्तान ऑफिस पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई है। मस्तोंग, नांगा पर्वत में भी गैर मुल्कियों पर हमले और चलास में आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई है। दहशतगर्दी के खात्मे के इस सफर में 234 दहशतगर्दों को 5 साल से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में 14 नौजवानों की शहादत के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज है। हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूजा वादी में 3 रोज़ा हड़ताल। श्रीनगर में कल एहतजाजी मार्च किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज ने जिला पलोमा में ऑपरेशन के नाम पर बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए 14 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था। काबिज भारतीय फौज के जबर का निशाना बनने वाले 12 नौजवानों को गुज़िश्ता रोज ही जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सुपुर्द खाक किया गया, जिनकी नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने कर्फ्यू तोड़ते हुए शिरकत की, जबकि 2 नौजवानों की तदफीन आज की गई। शहीद नौजवानों की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जिला भर से शरीक होने वाले हजारों अफराद ने इस मौके पर आजादी के हक में और काबिज भारतीय फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूजा वादी में 3 रोज़ा हड़ताल पर कारोबारी मराकज़, स्कूल, कॉलेजेस और दुकानें बंद कर दी गयी, जबकि श्रीनगर में कल बादामी बाग तक एहतजाजी मार्च किया जाएगा। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज कत्लेआम के मंसूबे पर निकली हुई है। कल भारतीय जारहियत में 14 कश्मीरी शहीद हुए। कश्मीरियों पर बराह रास्त गोलियां बरसाई जा रही हैं। कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को लिखा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। कल का जो वाक़या, अफसोसनाक वाक़या जो है, उसमें हमारी इत्तलात के मुताबिक 14 शहादतें हो चुकी हैं और रात तक तो ये इत्तला थी कि 200 के लगभग ज़ख्मी हैं लोग, लेकिन आज फिगर खासा बढ़ गया है। खत लिखा है, अभी साइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम। मैंने दूसरा खत लिखा है ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो अक़वाम मुत्तहिदा की हैं, जिनकी अभी रिपोर्ट भी शाया हुई थी, सेक्रेटरी जनरल OIC को लिखा है कल के वाक़यात को सामने रखते हुए, और इन सब से दरख्वास्त की है कि फिल फौर वो इंटरवीन करें ताकि इस बर्बरियत से और इस जुल्म से लोगों को पनाह मिल सके और नजात मिल सके। छुट्टी के रोज तफरीह के लिए लाहौर ये तफरीही मुकामात पर मौजूद हैं। जिलानी पार्क में लोग कैसे छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे कैसे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हसन खालिद जो इस वक्त पार्क में मौजूद हैं। हसन, बताइएगा सर्दी वहाँ पे कितनी है और लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल छुट्टी का रोज़ हो और जिंदा दिलाने लाहौरिये बाहर ना निकलें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और जहाँ मौसम भी खुशगवार हो तो शहरियों की बड़ी तादाद की जो है वो घरों से बाहर निकलती है। और आज भी सूरत हाल कुछ इसी तरह से है। इतवार का दिन है और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त जिलानी पार्क में पहुंच चुकी है और इसके साथ बच्चों की जो नन्ही मुन्नी ख्वाहिशात हैं उन्हें भी पूरा किया जा रहा है। कुछ फैमिली से बात करते हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनका क्या कहना है इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मुझे बताइएगा, छुट्टी का दिन है, आप भी अपने फैमिली के साथ निकले हुए, कैसा लग रहा है आपको? वालेकुम अस्सलाम। आज छुट्टी का दिन है, फैमिली के साथ हम निकले, लेकिन आज का मौसम बहुत खुशगवार है। अभी हम लोगों ने करण के साथ झूले लिए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो सी फैमिली आई हुई है हमने देखा है हर बच्चा एंजॉय कर रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? आज मौसम भी अच्छा है, हल्की हल्की ठंड भी है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत मज़ा आ रहा है, आज मौसम बहुत अच्छा है और घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप क्या कहोगे, कैसा लग रहा है? मज़ा आया? मज़ा आ रहा है आपको? झूले लिए आपने? झूले लिए? ये आप देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों की ख्वाहिशात को वालिदैन इस वक्त पूरा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और बच्चों का यही कहना है कि यहाँ पर आकर उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हालांकि ठंड भी है लेकिन इसके बावजूद बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और वालिदैन अपने बच्चों की खुशी को देख। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जायदाद और गाड़ी खरीदने का फॉर्मूला काम कर गया। टैक्स रिटर्न्स जमा कराने वालों की तादाद 30% बढ़ गई।
वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर का कहना है कि 15 दिसंबर 2017 को 11,21,533 टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए, जबकि 15 दिसंबर 2018 को 14,18,402 टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए हैं। 15 दिसंबर 2018 तक जो है वो 30,000 ज़्यादा टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए हैं। जायदाद और गाड़ी खरीदने का फॉर्मूला काम कर गया है, वज़ीर बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर की जानिब से ये बताया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि मईशत में बेहतरी के लिए रुपए की कदर में कमी ज़रूरी थी। रुपए की कदर में कमी से सनत बेहतर होगी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। सियासी बयानात का मईशत पर कोई असर नहीं पड़ता। अदायगियों में तवाज़ुन का मामला आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि मईशत में बेहतरी के लिए रुपए की कदर में कमी ज़रूरी थी और इससे सनत बेहतर होगी, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। जब रुपी डिवैल्यू होता है तो जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग लोन्स है उसका तो वो भर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुल्क में इतना इम्बैलेंस हो गया है तो इस वक्त हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय डिवैल्यूएशन करना पड़ा। सारे इकॉनमी को ठीक करने के लिए डिवैल्यूएशन करना पड़ा। तो ये दो मुख्तलिफ थिंग्स हैं। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट तो है लेकिन मैं समझता हूँ और कोई रास्ता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि डिवैल्यूएशन से इंशाअल्लाह हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की करेगा और हमारे जॉब क्रिएशन ज़्यादा होगा। और गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा कहते हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफे से मुतालिक वज़ीर ख़जाना ने बयान दे दिया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि डॉलर की कीमत पर उन्हें इल्म था तो बात खत्म हो गई। डॉलर की कीमत मार्केट के साथ मुंसलिक है। मोबाइल टैक्स खत्म होने से टैक्स नेट पर फर्क पड़ा। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। डॉलर का जो उतार चढ़ाव है वो दो चीज़ों पर मुनहसर है, एक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे और एक मार्केट सेंटिमेंट पे। जब मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा रुपए की कदर बढ़ जाएगी। ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह ये पैसे हमारे आने शुरू होंगे और जो हमारी ऑयल फैसिलिटी आनी शुरू होगी तो जो अगर कोई प्रेशर अब रह भी गया है तो वो भी ख़त्म होता जाएगा। जो टैक्स था टेलीफोन के ऊपर वो था, प्रीपेड फोन के ऊपर जो कार्ड के ऊपर जो टैक्स था वो था, तो वो जब से वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको जो है विदहोल्ड किया है उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल रहा है। जब हो जाएगा तो सामने। और खबर आपको देंगे कौमी एयरलाइन से मुतालिक PIA के 46 मुलाजमीन की डिग्रियां जाली होने का इंकशाफ हुआ है। जाली डिग्रियों पर 3 पायलट्स को मुअत्तल कर दिया गया। कैबिन क्रू के अमले की भी 43 डिग्रियां जाली करार दी गई हैं। जाली डिग्रियों से मुतालिक रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इसी बारे में मजीद जानेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान, इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PIA के 46 मुलाजमीन की डिग्रियां जाली होने का हुआ है। जाली डिग्री पर 3 पायलट्स को मुअत्तल कर दिया गया है और 43 डिग्रियां केबिन क्रू के अमले की भी जाली करार पाई हैं और 498 पायलट्स में से 449 ने डिग्रियां जमा नहीं करवाईं। 37 पायलट्स ने अभी तक डिग्रियां PIA को जमा नहीं करवाईं। 1864 केबिन क्रू में से 144 ने डिग्रियां जमा नहीं करवाईं, जबकि कॉकपिट मुलाजमीन की 1184 डिग्रियां मुतलका तालीमी बोर्ड को भिजवाई गई हैं और मजीद सैकड़ों डिग्रियों की तस्दीक का अमल बाकी है और मजीद जाली डिग्रियां निकलने का खदशा है और जिन अफराद ने डिग्रियां जमा नहीं करवाई उनका मामला भी मशकूक होने का। अहम खबर शामिल करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कल पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। वो पार्टी के गैर रस्मी इजलास में शिरकत करेंगे। अपोजिशन लीडर चैम्बर में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम अपडेट है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कल पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। बेल्जियम पहली बार हॉकी का आलमी चैंपियन बन गया। बेल्जियम ने फाइनल में हॉलैंड की टीम को शिकस्त दे दी। दोनों के दरमियान मैच सनसनीखेज रहा।
मुकर्ररा वक्त तक दोनों टीम्स कोई गोल नहीं कर सकी। पेनल्टी शूट्स आउट पर भी मुकाबला बराबर रहा तो बेल्जियम ने सडन डेथ सेशन में हॉलैंड को 3-2 से हराकर हॉकी का ताज अपने सर पर सजा लिया। दूसरी तरफ तीसरी पोजीशन के लिए ऑस्ट्रेलिया ने यकतरफा मुकाबले में इंग्लैंड को 8-1 से हरा दिया। ग्राउंड में ना खेल ना खिलाड़ी लेकिन पूरा टूर्नामेंट हो गया। रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन ने कागजी खातों में पूरा टूर्नामेंट करवा दिया। तफसीलात क्या हैं, रोजीना अली की रिपोर्ट में देखते हैं। खेल के साथ खिलवाड़ का एक और अनोखा कारनामा सामने आ गया। रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन ने हवाई टूर्नामेंट करा डाला। चौके भी लगे और छक्के भी, ओवर्स भी हुए और विकेटें भी उड़ी। लेकिन ग्राउंड में नहीं बल्कि सिर्फ कागजों में। जी जनाब, रावलपिंडी रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ने कागजी टूर्नामेंट कराना शुरू कर दिए। ग्राउंड में कुछ नहीं किया लेकिन कागजों में खाता पूरा कर लिया। यही नहीं बल्कि एक 6 साल का बच्चा भी हवाई टूर्नामेंट में 10 ओवर्स कर गया। और तो और बैरून मुल्क मौजूद खिलाड़ी का भी मैच खेलने वालों में नाम मौजूद है। जराये के मुताबिक क्रिकेट एसोसिएशन को इस गड़बड़ घोटाले में पीसीबी का आशीर्वाद भी हासिल रहा। जाली टूर्नामेंट्स और क्लब्स की स्क्रूटनी भी होती रही और मामले का इल्म होने के बावजूद पीसीबी की जानिब से एक्शन नहीं लिया गया। रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में एफजी पोलो ने न्यू एज डायमंड पेंट्स को शिकस्त देकर शाह रफी आलम पोलो कप जीत लिया। फैशन डिजाइनर SHY और खवातीन शायकीन ने पोलो क्लब के माहौल को शानदार करार दे दिया। इसी हवाले से हाफिज शहबाज की ये रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर पोलो क्लब में होने वाले फाइनल में एफजी पोलो ने न्यू एज डायमंड पेंट्स को से शिकस्त दे दी। एफजी पोलो के मीर हुजैफा के शानदार खेल के सामने डायमंड पेंट्स के खिलाड़ी बेबस दिखाई दिए। मशहूर फैशन डिजाइनर HSY ने भी फाइनल मैच देखा। उनका कहना था कि पोलो क्लब का माहौल इंतहाई शानदार है। हमारे पाकिस्तानी लोगों को मौके मिल रहे हैं अच्छी जगहों पे जाने का, अपने फैमिली को लेके जाने का। ऐसी चीजें आई थिंक और होनी चाहिए एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा मैच था आज। पोलो देखने के लिए आने वाली खवातीन ने पोलो के खेल और क्लब के माहौल को शानदार करार देते हुए कहा कि लोगों को पोलो देखने के लिए आना चाहिए। Environment बहुत अच्छा है। I think they should do more activities like this because Shah Rafi Alam ka this is the first time they won this cup, so I think it's a good activity. Plus it's winter. Yeah, polo is such a good sport, and ये beautiful जो grounds है and the crowd and the sport itself is so inspiring. It's really good to come here in winters. Beautiful weather, beautiful ambience, nice people, good day to come. And we should promote such games a lot because this adds up to the entertainment of the city. सूबाई ज़ेरे जंगलात और वाइल्ड लाइफ सब्तैन खान फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। साबिक वज़ीर ख़ारजा सैयदा आबदा हुसैन कहती हैं कि नवाज शरीफ का सियासी बाब अभी ख़त्म नहीं हुआ। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभालेंगी तो मसला होगा। उन्होंने ये सब कुछ 24 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब दे में एंकर इफ्तिखार अहमद को जवाब देते हुए कहा। प्रोग्राम आज रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। और मरी एक बार फिर से सयाहों के लिए ड्रावना ख्वाब बन गया। तफरीह के लिए आए सयाहों को एक बार फिर मार पीट का निशाना बना दिया गया। वाकया मॉल रोड GPO चौक पर पेश आया। सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले भी छुड़ाते रहे लेकिन ओबाश नौजवानों ने किसी की एक ना सुनी। गुज़िश्ता बरस भी दुकानदारों और मुकामी अफराद ने तफरीह के लिए आने वाली फैमिलीज के साथ हतकमेज़ सलूक किया था, जिस पर मुतासर अफराद ने बाइकॉट मरी की तहरीक सोशल मीडिया पर चलाई थी। अहम खबर शामिल करेंगे। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए मुसाफिर जावेद अली से 2 किलो से जायद क्रिस्टल मेथ
बरामद कर ली है। मुलजिम सऊदी अरब जा रहा था, मनशियात बोतलों में छुपा रखी थी। आलमी मार्केट में मनशियात की मालियत 2 करोड़ रुपए से जायद बताई गई है। ये कार्रवाई की गई है एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से कराची एयरपोर्ट पर, और मुसाफिर जावेद अली से 2 किलो से ज़्यादा क्रिस्टल मैथ बरामद कर ली गई है। ये मुलजिम सऊदी अरब जा रहा था, मनशियात को बोतलों में छुपाया गया था। फ्रांस में पीली जैकेटों वालों का एहतजाज 5वें हफ्ते में दाखिल हो गया है। पली कूचों में पीली जैकेट वालों के शदीद मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरों में एक और शख्स हलाक भी हो गया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं और दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोग अपना पासवर्ड 123456 या फिर आई लव यू रखकर समझते हैं कि बड़ा मार्का मार लिया है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आपके ईमेल या फेसबुक का पासवर्ड आसान है तो किसी भी नुकसान के लिए तैयार रहें, क्योंकि कमजोर और आसान पासवर्ड रखने का लाजमी नतीजा ये होता है कि कोई ना कोई इसका अंदाजा लगाकर आपके ईमेल या फेसबुक अकाउंट में घुस जाता है और न सिर्फ प्राइवेट मालूमात चोरी हो जाती हैं, बल्कि आप दोबारा अपना अकाउंट खोलने के काबिल भी नहीं रहते। बहुत से लोग 1 से 6 तक के हिंसे या फिर अपने प्यारों के नाम के पासवर्ड रख लेते हैं। यही नहीं, बाज खतरों के खिलाड़ी तो लफ्ज पासवर्ड को ही अपने अकाउंट की कुंजी बना डालते हैं। ऐसे पासवर्ड तोड़ना न सिर्फ हैकर्स के लिए बाएं हाथ का खेल होता है, बल्कि कोई आम इंसान भी आपकी खुफिया मालूमात तक बआसानी रसाई हासिल कर सकता है। IT माहिरीन का कहना है कि कभी भी सिर्फ अदादो शुमार पर मुश्तमिल पासवर्ड ना रखें, चाहे आपको कितना ही मुश्किल क्यों न लग रहा हो। बेहतर तरीका ये है कि नंबरों और अल्फाज को मिलाकर पासवर्ड बनाएं और अपने पसंदीदा खेल, मुल्क या बच्चों के नामों को पासवर्ड के तौर पर हरगिज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी बआसानी चोरी हो जाते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक महफूज पासवर्ड में कम अज कम 12 हरूफ मौजूद होने चाहिए। इसमें बड़े और छोटे। इस बुलेटिन से इतना ही।